TV, Next International. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ الرحمن الرحیم۔ ٹی وی نیکسٹ کے پروگرام مذاق میں آپ کا میزبان صفدر علی انشاء حاضر ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا 5واں پروگرام ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے 4 پروگرام نشر ہو چکے ہیں اور آپ کی جو ہے پذیرائی حاصل کر چکے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس پروگرام کی بھی پذیرائی کریں گے۔ آپ کی آرا سے یہ پروگرام اور زیادہ بہتر ہوتا جاتا ہے، اس میں نکھار پیدا ہوتا جاتا ہے، اور ہم مذاق میں کام کی باتیں کرتے ہیں اور کچھ شگفتہ شاعروں سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس ماحول میں جو پریشان کن ماحول ہو گیا ہے، اس میں تھوڑی سی مسکراہٹیں آپ کی نظر کریں۔ آپ کو مسکرانے کی جو ہے وہ آپ کو مسکرانے کے لیے جو ہے وہ ہم نے اسٹوڈیو میں اس وقت 2 مزاحیہ شاعر یا شگفتہ شاعر جو ہے ان کو مدعو کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ان کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے پہلے مہمان ایک مزاح گو شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مزاحیہ نثر نگار بھی ہیں، اور ان کے شعری مجموعے گدگدی، شرارت اور ایک اور شعری مجموعہ ان کا جو ہے وہ چٹکیاں کے نام سے آ چکا ہے، جبکہ نثری حوالے سے کون سے کام بند ہیں یہ ان کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزاح کے حوالے سے پورے پرفیکٹ ہیں، نثری مزاح بھی اور شعری مزاح میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ میری مراد ہے مرزا اسی اختر صاحب سے میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ہمارے دوسرے مہمان ایک گوشہ نشین شاعر تھے، اور مشاعروں میں جانا کم ہوتا تھا ان کا۔ ہم نے کوشش کی کہ ایک اچھا مزاح کہنے والا جو ہے وہ گوشہ نشین نہ رہ سکے، تو ہم نے انہیں مدعو کیا، اور آج آپ کے سامنے وہ اپنے اشعار سے بھی آپ کو محسوس کریں گے۔ میری مراد ہے اکبر ملک صاحب سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یوں یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ میں خاص طور سے آپ کے اور ان شاعروں کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنوں، تو سلسلہ شروع کرتے ہیں مرزا اسی اختر صاحب سے۔ اسی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ سلسلہ شاعری کا آپ نے کب شروع کیا؟ کوئی ایسی کوئی تحریک ملی آپ کو کسی وجہ سے کہ آپ جو ہے رجحان کیا تھا آپ کا اس طرف، کیسے آئے؟ ہوا یہ تھا کہ میں کالج میں پڑھا تھا، فرسٹ ایئر کی کلاس میں۔ ہمارے استاد تھے پروفیسر عنایت علی خان مرحوم، اور وہی اس کالج کے پرنسپل تھے۔ اچھا۔ تو بورڈ آفس سے ایک لیٹر آیا کہ بھائی 2 طالب علموں کو بھیجیں آپ، ایک مقابلہ ہے شاعری کا، ایک غزل لکھ کے لائے اور ایک نظم لکھ کے لائے۔ تو مجھے چونکہ اچھے اشعار جمع کرنے کا شوق اسکول کے زمانے سے لگ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک ڈائری بنا لی تھی اس کو، اور اس میں محفوظ کرتا تھا میں اچھے اشعار۔ تو خیر اسکول میں کالج میں بھی بیت بازی کا ہی مقابلہ ہوا تھا، وہاں میں نے اشعار سنائے تھے۔ تو عنایت صاحب نے مجھے بلا لیا کہ بھائی آپ کیونکہ متعلق ہیں اس شعبے سے، تو آپ آ جائیں اور جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں غزل کی صورت میں 5-7 اشعار لکھ لائیے۔ اب چونکہ اس وقت ہمیں اوزان کا بحر کا کچھ پتہ نہیں تھا، جی تو جو ذہن میں آیا وہ لکھ کے لے گئے۔ تو عنایت صاحب نے اس نثری کہیں گے اس کو، جی ہاں بالکل، اس نثر کو یعنی اشعار کے سانچے میں ڈالا۔ جی بہت اچھی اصلاح دی انہوں نے، اور ایک 6-7 شعروں کی غزل تیار ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اور طرح غزل لکھی تھی، اچھا، ہاں یاد ہے آج تک وہ، حالانکہ 50 سال 40 سال پرانی بات ہو گئی۔ اے درد نہ رکھ کوئی سروکار دوا سے، اے درد نہ رکھ کوئی سروکار دوا سے، یہ مصرع طرح تھا۔ اچھا ہاں، ہم نے اس پہ گرہ لگائی، ہاں، یہ عشق کا آزار ہے جائے گا جفا سے، واہ، اے درد نہ رکھ کوئی کیا کہنا سروکار دوا سے۔ گرہ لگانا بھی ایک کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک استاد کا شعر یا بڑے شاعر کے شعر جو ہے اس کے مصرع پہ آپ گرہ لگاتے ہیں تو وہ اس کو زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر مقابلے سے آئے، اور بس جب سے ہمیں شاعری کا شوق لگ گیا۔ اچھا، عنایت صاحب کو ہم نے استاد بنایا، انہیں کو اپنا کلام دکھاتے رہے، اچھا، اور اس طریقے سے شاعری کی ابتدا ہو گئی۔ اچھا،
कुछ अशार, कुछ क़तात इनायत कीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। मैं पेश कर देता हूँ। जी अब करंट अफेयर है, जी जी, हालात हाज़िरा के हवाले से। हालात हाज़िरा के हवाले से है। आटा, तो आटा जो है वो दिन ब दिन रेट्स के हवाले से बहुत ऊंचा होता चला जा रहा जी, है, आगे जी। रेट बढ़ जाते हैं। तो अर्ज किया है कि पहुंच से दूर है मेरी जो आटा, पहुँच से दूर है मेरी जो आटा, पहुंच से दूर है मेरी जो आटा, खुदाया दिल मेरा यूं शाद कर दे, वाह, खुदाया दिल मेरा यूं शाद यूं कर दे। शाद कर दे। वो जो नुक्कड़ पे है तंदूर वाला, वाह वाह वो जो नुक्कड़ पे है तंदूर वाला, वाह, मुझे तू उसका घर दामाद कर दे। भाई क्या कहना है, क्या कहना है भाई, मुझे वाह तू वाह उसका वाह, घर दामाद कर क्या दे। क्या वजाहत की आपने महंगे आटे की कि वो भाई जो भाई नुक्कड़ वाह, पे है तंदूर रोटी तो वाला, नसीब होगी ना, चाहिए। मुझे तू उसका घर दामाद कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, एक और ताज़ा कथा पेश कर रहा हूँ। हम्म अर्ज किया है कि कहाँ तलक तू गुजारेगा फाका मस्ती में, हम्म, कहाँ तलक तू गुजारेगा फाका मस्ती में, वाह, जहाँ में मेरी तरह तू मकाम पैदा कर, अच्छा है, जहाँ में मेरी तरह तू मुकाम पैदा कर। पैदा कर। कहा डकैत ने साथी के कान में आकर, वाह, कहा डकैत ने साथी के कान में आकर, खुदी को बेच, खुदी को बेच, डकैती में नाम पैदा अरे कर। वाह वाह वाह, अच्छा खुदी को है, बेच, डकैती में नाम पैदा कर। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और साहब गालिब के मिसरे पर एक तस्वीर की है। जी अता कीजिए। अर्ज किया है कि याद करते हैं नौजवानी को, याद करते हैं नौजवानी को, जो कभी लौट कर नहीं आती, वाह वाह, जो कभी लौट कर नहीं आती। अब तो ऐनक लगा के भी आसी, हाय हाय हाय, कोई कोई सूरत नहीं नजर नहीं आती, अब तो ऐनक लगा के भी आसी, कोई सूरत नजर कोई सूरत नहीं आती। नहीं आती। और आफिया सिद्दीकी के हवाले से एक शेर है, अच्छा अच्छा, वो हमारी बहन जो अमेरिका में। बिल्कुल बिल्कुल, है। अल्लाह ताला करम करे उसका। आमीन। आफिया कैद है वहाँ कब से, वाह आफिया कैद है वहाँ कब से, कोई उम्मीद बर नहीं आती, वाह, कोई उम्मीद बर नहीं आती। इस कदर जुल्म एक औरत पर, वाह शर्म तुमको मगर नहीं वाह आती। वाह वाह वाह, इस कदर जुल्म एक औरत एक पर, औरत पर शर्म तुमको मगर नहीं आती। और पेश कीजिए जी, हाँ, अच्छा। एक आध कथा और सुनाइए। ये कथा देखिए साहब, इस कथे का उन्वान है मामू। हम्म, अर्ज किया है कि बने हैं जब से थानेदार मामू, वाह, बने हैं जब से थानेदार मामू, बने हैं जब से थानेदार मामू। फिनिश अपनी कहानी हो गई अच्छा है है, भाई, फिनिश हो गई। फिनिश अपनी कहानी हो गई है। हाँ वो लड़की हाँ, जिसको हम बीवी बनाते, वाह, हमारी वो मुमानी हो गई है। अच्छा है, वो लड़की जिसको हम बीवी जिसको बना, हम बीवी बनाते, वाह वाह, हमारी वो मुमानी हो गई है। और सब चार मिसरे और देख लीजिए। इकबाल के मिसरे पर तस्वीर की है। वाह वाह, एक तकरीब के दौरान हुआ जोहर का वक्त, वाह, एक तकरीब के दौरान हुआ जोहर का वक्त। अपनी अपनी ही मसाजिद में पढ़ी सबने नमाज, भाई क्या कहना है, अपनी अपनी ही मसाजिद में पढ़ी सबने नमाज, और जो ही खाना लगा है हमने ये मंजर देखा, वाह, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज। वाह एक वाह ही वाह सफ में, वाह, क्या कहना, यानी आज कौन मुत्तफिक हुई तो खाने पे हुई जाके, जी। कहने का मकसद ये और है। जो ही खाना लगा वाह वाह हमने वाह, ये मंजर देखा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। शुक्रिया मिर्ज़ा आसिफ अख्तर साहब। नाज़रीन, हमारे मिर्ज़ा आसिफ अख्तर साहब अपने क़ितात सुना रहे थे, मज़ाहिया क़ितात, और इनसे बातें भी की हमने, और हम मज़ीद भी करेंगे। हम अपने दूसरे मेहमान की तरफ आते हैं, अकबर मलिक साहब की तरफ। और मैंने इब्तिदा में कहा था कि अकबर मलिक साहब गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए थे, लेकिन हम इन्हें ले आए मार्केट के अंदर। अभी आपका काम है कि आप पसंदीदगी का इजहार करते हैं और इनके अशार सुनते हैं। अकबर साहब, ये बताइए कब किया शायरी का आगाज़? आपसे भी यही सवाल है जी। मेरे ख्याल में 87 और 88 के दरमियान में। अच्छा, मतलब 88 साल हो गए या 88 सन 88 की बात कर रहे हैं? 88 सन 88 सन 88 की बात कर रहे हैं, जो है वो
बस दोस्तों के साथ बैठे जी। रहते थे, अदब वालों लोगों के साथ जो अदब तख्लीक करते हैं, तो बस वहाँ से ये शौक़ जागा। और फिर संजीदा शायरी और रोमानवी शायरी के बाद जो है वो हमारे अजीज़ बरदर हैं छोटे नदीम हाजिर, जी जी उनकी और हमारे उस्ताद शायर हैं जनाब मंजूर आतिश साहब, जी जी उन्होंने जौलक कासमी साहब, उन्होंने जी। फिर कहा कि आप जो है वो मिज़ा की तरफ आए, अच्छा है। और लाखों की तादाद में जो है ना संजीदा शायर हैं। जी जी, और मिज़ा वाले ने। मिज़ा वाले बहुत कम। ये जौला कासिमी का बहुत जी। बड़ा कमाल था कि जी। उसने जोड़ा खासतौर से मिज़ा के हवाले से, और हम भी उसमें शामिल थे उस गिरोह में। जी बस इसमें कोशिश की और फिर थोड़ा सा इसमें आए। मज़ा कहना तो बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इस दौर में पुरआशोब दौर में लोगों के चेहरों पे हंसी और मुस्कुराहट लाना ये एक काम है। अच्छा आजकल जो है वो कुछ नौजवान जो है वो उस्ताद को मानते ही नहीं है कि बस हम तो शायर बन गए खुद ब खुद, और ज़बरदस्ती आने की कोशिश करते हैं। तो क्या कोई है उनके बारे में आपकी राय है? सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कहीं पर भी नहीं हुआ है। एआई और जदीद तरक्की कितनी ही आगे चली जी जाए, जी लेकिन आखिर वो मशीन है, हाँ बिल्कुल, इंसान के जो एहसास हैं वो तो उसमें वो नहीं तो है ना। नहीं ला सकते। बिल्कुल हाँ तो रोने के वक्त और हंसने के वक्त हाँ हाँ, जज्बात अच्छा है। अलग अलग, वो तो इसको नहीं पहचान चलिए। सकती और ना ही महसूस कर सकती। वाह वाह, तो उस्ताद के बगैर तो कुछ भी नहीं है। बेशक बिल्कुल, उस्ताद तो यार उस्ताद होता है। बिल्कुल। कुछ कलाम अता कीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। ज़्यादातर हम अपनी ज़ौजा से बहुत मोहब्बत करते हैं, अच्छा माशाअल्लाह, तो अशार भी उन्हीं के लिए है। भी सुभान अल्लाह, वो ज़ाहिर है घर जाना है तो आपकी खिदमत में खूबसूरत समातों की नज़र के किस कदर उससे प्यार करता हूँ, किस कदर उससे प्यार करता हूँ, किस कदर उससे प्यार करता हूँ, मेरी चाहत गवाही देती है, मेरी चाहत गवाही देती है। अब मुझे दूसरों की बेगम में वाह, अपनी बेगम दिखाई अरे देती क्या है। कहना साहब, बस किस बढ़िया। कदर उससे प्यार करता वाह 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 हूँ, वाह मेरी चाहत गवाही देती है, वाह वाह वाह, अब मुझे दूसरों की बेगम में वाह। अपनी बेगम दिखाई देती है। क्या कहना साहब, क्या कहना। और महंगाई का आलम है, जी जी, जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ऐसे ही शेर के चीनी भी महंगी हुई चाय बनाने के लिए, चीनी भी महंगी हुई चाय बनाने चीनी के भी लिए, महंगी हुई चाय बनाने के लिए, दाल भी नापैद है सालन पकाने के अरे लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। दाल भी दाल नापैद भी है सालन नापैद है सालन पकाने के लिए, सालियां आती जो अकबर दिल बहल जाता मेरा, वाह वाह, आ रहे हैं 7 साले दिल जलाने अरे के लिए। क्या कहना है भाई, वाह 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 यार, वाह वाह, ये रहे तो आपने हैं दिल के फपोले फोड़ ही डाले आखिरकार। 7 साले आ रहे हैं, दिल जलाने के लिए। हाँ। और एक किताब की खिदमत में कि उसने पैगाम दिया है मुझे मैसेंजर पर, उसने पैगाम दिया है मुझे उसने मैसेंजर पर, पैगाम दिया है मुझे मैसेंजर पर, तुम ना तोहफे में मुझे चूड़ियां कंगन भेजो, वाह, तुम ना तोहफे में मुझे तुम ना चूड़ियां कंगन तोहफे में भेजो, मुझे चूड़ियां कंगन भेजो, मुझको मतलूब नहीं पायलो झुमके अकबर, वाह वाह, मुझको मतलूब नहीं पायलो झुमके अकबर, वाह। हो सके तो मुझे पेट्रोल का गैलन भेजो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है यार, क्या हो हस्बे सके- हाल है बिल्कुल। और रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें हो बढ़ रही सके हैं। तो जी हाँ, मुझे पेट्रोल का गैलन भेजो। दिन ब दिन जो है टैक्सेस की भरमार है, जी हाँ, चलने पे टैक्स, बैठने पे टैक्स, जी। बोलने पे टैक्स। जी जी बिल्कुल, और बस एक टैक्सी कथा- टैक्स, जी अता कीजिए बिल्कुल। कि कातिल सी अदाओं पे बड़ा टैक्स लगेगा, कातिल सी अदाओं पे, कातिल सी अदाओं पे बड़ा टैक्स लगेगा, बड़ा टैक्स लगेगा, इन मस्त निगाहों पे बड़ा टैक्स लगेगा, वाह वाह हाजत को अगर जाओ तो फिर सोच के जाना, वाह वाह, बात जगह तो देना पड़ता है जी। हाजत को अगर अरे, जाना जरा सोच के जाना, जाओ। ऊपा की सदाओं पे बड़ा टैक्स लगेगा, लगेगा, वाह वाह और कातिल सी अदाओं पे बड़ा वाह वाह, टैक्स लगेगा। और कुछ अदा कीजिए। जी हाँ। और एक शेर, वो लोग जिनकी बेचारे कंवारपन में जिंदगी गुजार देते हैं, जी 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 उनके लिए एक जी, किताब के- कुंवारों सुन लो, जी। आपके लिए भी हमदर्दी का जज्बा है अकबर मलिक साहब के पास। जी जी, कि अफसोस मुकद्दर में लिखा है ये तजर्रुद, अफसोस मुकद्दर में लिखा है ये तजर्रुद, वाह सपनों में मेरे रेशम व शबनम नहीं आती, वाह, सपना में अफसोस
मुकद्दर में लिखा है ये तजर्रुद, वाह सपनों में मेरे रेशम व शबनम नहीं आती, भूले से जो खेलूं मैं कभी ताश की बाजी, वाह वाह वाह, उसमें भी मेरे हिस्से में बेगम बेगम नहीं। नहीं आती। भाई क्या बात है भैया, ये तो इंतहा है बदकिस्मती की। वाह वाह अफसोस वाह, मुकद्दर में वाह, वाह, लिखा वाह, है बिल्कुल ये तजर्रुद, वाह 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 सपनों में मेरे रेशम व शबनम नहीं आती, वाह भूले से जो खेलूं मैं कभी ताश की बाजी, वाह वाह वाह, उसमें भी मेरे हिस्से में बेगम नहीं आती। बेगम नहीं आती। वाह वाह वाह, और कुछ अदा कीजिए, एक अदा और है। और है कि करंट अफेयर और हमारा जो नेट के बाद और जदीद उसके अलावा कि हो गए गूगल के आशिक अब मियाँ, हो गए गूगल के आशिक अब हो मियाँ, गए गूगल के आशिक अब मियाँ, और बेगम फेसबुक की हो गई, और बेगम फेसबुक की हो गए गूगल के आशिक अब मियाँ, और बेगम फेसबुक की हो गई, हो गए बच्चे फिदा टिकटॉक पर, वाह वाह, जिंदगी तेरी हकीकत खो गई। क्या बता, हो गए बच्चे फिदा टिकटॉक पर, हो गए बच्चे फिदा टिकटॉक पर, जिंदगी तेरी हकीकत खो गई। हो गई। वाह वाह वाह, और कुछ अदा कीजिए, एक अदा और जी दीजिए। तो एक किता और हाँ। आपकी खूबसूरत समातों की नज़र के बीच चौराहे पे फूटेगी किसी दिन हांडी, बीच चौराहे पे बीच फूटेगी किसी दिन चौराहे पे हांडी, फूटेगी किसी दिन हांडी, यूं जमाने से छटा इश्क छुपाने वाले, वाह, बहुत अच्छे। यूं जमाने से छठा इश्क छटा इश्क छुपाने छुपाने वाले, ऐसे दफ्तर से भला कौन करेगा छुट्टी, वाह। एक लड़की हो जहाँ 100 हो पटाने वाले। अरे क्या कहना है भाई, क्या कहना है भाई, क्या माहौल की अक्कासी की है आपने। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है, एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, आप कहीं ना जाइएगा, दोबारा हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। TV Next International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मज़ाक़ी मज़ाक में आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। बात हो रही थी दो शायरों से, और हमारे जो पहले शायर थे मिर्ज़ा आसिफ़ अख्तर साहब, उनकी तरफ दोबारा आते हैं और उनसे पूछते हैं कि शायरी के मैदान में एक ज़माना था कि एक उस्ताद हुआ करता था और उसके बहुत सारे शागिर्द होते थे, और जब तक उस्ताद को शेर दिखा नहीं दिया जाता था वो मार्केट में नहीं आता था, वो कहीं किसी मशायरे में सुनाया नहीं जाता था, बल्कि मायूब समझा जाता था। अब भी समझा जाना चाहिए, लेकिन ये सिलसिला बिल्कुल नापैद होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। मतलब आपकी क्या राय है इस बारे में कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई देखिए, उस्ताद की जो हैसियत है वो तो मुसल्लम है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो उस्ताद के मशवरे के बगैर आप कर रहे हैं, जी। तो हमारे उस्ताद इनायत साहब कहा करते थे कि अगर उस्ताद के मशवरे के बगैर आपने अपना कलाम मुशायरे में पढ़ दिया तो आप ऐसे गिरेंगे जैसे नाक के बल बंदा गिरता है ना, जी जी, नाक के बल जी, ऐसे गिरेंगे आप। लिहाजा उस्ताद होना चाहिए और पुरानी रवायात पे कायम रहना चाहिए, और जाहिर है कि अदब का जो फ़रोग़ है वो जो उनकी बातें हैं अदब की, जो उसकी शराइत हैं, उनको कमा कऊ पूरा करना चाहिए। अच्छा आसिफ साहब, आमद का एक सिलसिला होता है और ज़ाहिर है कि शायर के साथ ये मामला रहता है कि कब आमद हो रही है कब नहीं हो रही है, उसका एक ख़ास वक्त होता है। और तो क्या कोई आमद का आपके साथ भी कोई ख़ास सिलसिला है? मतलब मेरे साथ तो ये है कि मैं जितना मसरूफ़ होता हूँ ना, उस वक्त मेरे पास जो है शेरों का नुज़ूल होता है, और अगर खामोश बैठा होता हूँ तो शायद नहीं होता। चलते फिरते गाड़ी में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, तो कोई ना कोई मिसरा अटकता है और उसके बाद दो चार शेर हो जाते हैं। आपके साथ बताइए क्या है सिलसिला? भाई बात यह है कि आमद का जो सिलसिला है वो आमतौर से जो कहने वाले शायर हैं, अच्छे शायर हैं, उनके यहाँ ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे मीर का नाम लिया जा सकता है इस हवाले से, गालिब का नाम लिया जा सकता है, और मीर का नाम लिया जा सकता है, तो इनके यहाँ आमद ही आमद है। जी हाँ। तो मैं समझता हूँ कि कभी कोई किसी परेशानी में इंसान होता है, किसी मसले में उलझा हुआ होता है, तब तो शायद ये मुमकिन है कि कोई सिलसिला अब उसका बन जाए। मगर ये कि अगर वो बिल्कुल फ्रेश है शायद, तो वो आमद इंशाल्लाह उसके साथ होती रहती है। अच्छा शायद
जी जी होती है। हाँ, आउट भी असल में एक मेहनत है, और बाज़ दफ़ा ख़ास कोई मौजू दिया जाता है कि भी इस पर शेर कहे जाएँ मतलब। तो जैसे वो न्यूज़ीलैंड की टीम आई हुई थी जलाल कासमी के ज़माने में, तो ईद का मुशायरा था, तो कहा गया कि भाई क्रिकेट के मुताबिक जो है अशार कहिए। तो इनायत अली ख़ान से मैंने कुछ मिसरे लिख के उनसे टेलीफोन पर रब्ता किया और उनको ठीक करवाया, और वो फिर तो वो ज़्यादा उसका ज़्यादा हिस्सा जो था आबूद के ऊपर था मतलब। ये हमारे जो सेहत के सबसे बड़े शायर हैं खालिद इरफान साहब, हाँ, उनके बाज़ अशार ऐसे हैं कि वो आबूद की आला तरीन मिसाल में बन सकते हैं मतलब, ठीक है ना। इमदाद के पैकेज में शराइत का पुलंदा, गोरे से मिला है कभी गोरी से मिला है। अब देखिए इसमें जो मेहनत की गई है ना, इमदाद के पैकेज में शराइत का पुलंदा, गोरे से मिला है कभी गोरी से मिला है, उस कशकोल में सुराख है सुराख में पाइप, पाइप का सिरा घर की तिजोरी से मिला है। वाह वाह। तो अब ये देखिए कि इसमें कितनी मेहनत की गई है मतलब। आवोट हालांकि जाहिर है कि आमद का जो मज़ा होता है शेर का वो तो एक कुदरती होता है ना, आवोट में आपको ज़रा मेहनत करना पड़ती है, लेकिन ये कि बाद शेर जाहिर है कि बड़ा शायर है तो उसके अंदर ये खूबी है कि वो आवोट को भी जो है वो उसको इस्तेमाल करता है और उसके ज़रिए शेर को मज़ीद उसमें निखार पैदा कर लेता है मतलब। अच्छा आसिफ साहब, ये क्या बताइए कि अदब के हवाले से अगर हम आपसे पूछें कि अदब रूबा ज़वाल है या नहीं है, मतलब आपकी इसमें क्या राय होगी इसमें? बात असल ये है कि जब तक इंटरनेट बाजार में नहीं आया था उस वक्त तक तो बाकायदगी से हर चीज़ अपने उरूज की तरफ जा रही थी जी। मगर इसके आने के बाद बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो कोशिश ही नहीं करता कि मैं किसी महफिल में जाऊं, वहाँ जाऊं, सुनूं या पढ़ूं शेर। वो अपने वहीं बैठ के अपने निकाल लेता है अदब का समा जो भी है, और उसमें वो अपनी अदब की प्यास बुझा लेता है। हाँ, जो पुख्ता शायर हैं या जो शौक़ रखते हैं वो बहरहाल जाते हैं मुशायरों में भी, लेकिन ये कि इंटरनेट ने अदब को ज़वाल की तरफ आमादा किया है, और ज़्यादा नहीं तो बहरहाल कुछ किया है। हम लोग असल में मनफी असरात ज़्यादा कबूल करते हैं, बल्कि मनफी मायनों में किसी चीज़ को भी जो ईजाद हमारे सामने आती है उसके वो मनफी मायने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ शऊर की और तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है मतलब। उसकी वजह भी सारी ये है मतलब है। तो कुछ अशार इस हवाले से हमारे नाज़रीन के लिए पेश कीजिए। मैं चंद क़तार पेश कर देता हूँ ज़रा। बिजली वालों के नाम है ये क़ता। जी 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 बिल्कुल। बिल हज़ारों में जो बिजली का मिला है आसी, वाह। बिल हज़ारों में जो बिजली का मिला है आसी, जोश में बेच दिए बीवी के बुंदे हमने, वाह। जोश में बेच दिए बीवी के बुंदे हमने, वाह वाह। और जब जुल्म बढ़ा हद से तो औरों की तरह, वाह वाह। और जब जुल्म बढ़ा हद से तो औरों की तरह, बहरे जुल्मात में डलवा दिए कुंडे हमने। अरे क्या बात है, अच्छा है, बड़ा हद से बहुत अच्छा है ये, औरों की तरह फिर बड़ी बहरे जुल्मात में डलवा दिए कुंडे हमने, वाह वाह। और जब जुल्म बढ़ा हद से तो औरों की तरह, वाह, बहरे जुल्मात में डलवा दिए कुंडे हमने, वाह वाह। आजकल एक डंपर माफिया है, आए दिन आप सुनते होंगे कि दो चार लोग जी हाँ उसकी जद में आके जी हाँ जहाँ बाहर हो रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये माफिया है। जी हाँ, मैं पेश कर रहा हूँ इसका उन्वान ही मैंने रखा है डंपर माफिया। अर्ज किया है कि बरबरियत रक्स से वहशत में मगन है इन दिनों, बरबरियत रक्स से वहशत में मगन है इन दिनों, जिंदगी मातम कुना है बरबरों के दरमियान, वाह वाह। जिंदगी मातम कुना है बरबरों के दरमियान, रोज बिजती है सफ़े मातम घरों में आजकल, वाह। रोज बिजती है सफ़े मातम घरों में आजकल, जिंदगी अर्जा हुई है डंपरों के दरमियान, वाह वाह वाह। रोज बिजती है वाह वाह, जिंदगी अर्जा हुई है घरों में आजकल, जिंदगी अर्जा हुई है डंपरों के दरमियान, वाह। बहुत खाना। और साहब 4 मिसरे महंगाई के हवाले से देख लीजिए। महंगाई ने दिन ये दिखाए, महंगाई ने दिन ये दिखाए, करते हैं सब हाय हाय, वाह। करते हैं सब हाय हाय, कोई किसी के घर क्या जाए, वाह। मिलती नहीं है कहीं भी चाय, अच्छा है, कोई किसी क्या याद दिला दिया आपने, अच्छा। मिलती नहीं है कहीं भी चाय। और पेश कीजिए एक किताब और। अच्छा, गालिब के मिसरे पर तज़मीन की है। उनका मशहूर शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो मिसरा सानी को देखिए मिजाज के रंग में।
अर्ज किया है कि हाल क्या हो गया है अब्बा का, हाल क्या हो हाल गया क्या अब्बा हो का? गया है हाल अब्बा क्या का? हो गया है अब्बा का, बेहतरी क्यों नजर नहीं आती, वाह वाह, बेहतरी क्यों नजर नहीं आती, फेल तो मैं हुआ हूँ अब्बा को अरे क्या कहना है, वाह नींद क्यों रात वाह भर वाह नहीं वाह आती? वाह, क्या कहना है? पहले तो मैं हुआ बहुत आला, हूँ, बहुत आला। अब्बा को नींद हाल क्यों रात भर नहीं आती। हाल क्या हो गया अब्बा है होना बड़ा अब्बा मुश्किल का, काम है, तो ये अब्बा ही जानते हैं। जी हाँ, हाल क्या हो गया है अब्बा वाह का, वाह, बेहतरी बेहतरी क्यों नजर नहीं आती, वाह वाह, फेल तो मैं हुआ हूँ अब्बा को जी नींद क्यों रात भर नहीं वाह आती। वाह, बहुत वाह आला, वाह, क्या बहुत कहना खूब, साहब। बहुत खूब। शुक्रिया। जी अकबर मलिक साहब, जनाब, खवातीन मज़ाह निगार बहुत कम हैं, और आपकी क्या राय है, इसमें क्यों कम है मतलब? तो फेसबुक पे, हाँ इस पर तो ट्विटर बहुत पे तो खवातीन ही खवातीन है। जी हाँ वो है, बस असल में फेसबुक वाली खवातीन वो हमारे मतलब की नहीं है ना यहाँ पर, और उस पर तो वो हर बहुत कोई अच्छे अच्छे अशार कह रही हाँ है। अच्छे अच्छे अशार जो है वो अच्छे क्या, बल्कि 2 नंबरी और 3 नंबरी अशार गालिब के नाम से, कोई इकबाल के नाम से, उस पर तो हर एक को इजाज़त है ना मतलब। और सरे महफिल आके कोई शेर सुनाए तो फिर जो शुआरा बैठे होते हैं सीनियर, वो बताते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कितने पानी में है। और अच्छा, ये गिरोहबंदियाँ के हवाले से अगर कोई आपके जहन में आइडिया है, ये जो तंजीमें बनी हुई हैं, ये मेरी है, ये मेरी, ये पॉकेट्स छोटे छोटे बने हैं, और इसमें आपकी राय क्या है बताइए थोड़ा सा, अगर है नहीं तो मैं बताता हूँ। पॉकेट्स तो देखें हमारे माशरे में हर फील्ड में है, हाँ तो अदब उससे कैसे महफूज हाँ, हो वो तो सकता है? महफूज नहीं रख सकते, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड होता है मतलब। अब जो चैनल्स पे शोरा आते हैं, माजरत के साथ बड़ी, आप उनका मेयार देख लें। बहरहाल मैं तो इतना बड़ा शायर नहीं, आप जैसे हाँ। असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आप अगर उनका मेयार देखेंगे तो आप खुद बताइए कि वो मीडिया पे और चैनल्स पे आने के काबिल हैं, उनके हाँ, शोरा हैं। ठीक है। तो वो सिलसिला तो वो पॉकेट्स वाला ही है हाँ। कि जो जिसके ग्रोह में चला जाए, जी जी हाँ, जो जिसके ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, हाँ। तो जाहिर सी मैंने तो ये देखा कि छोटी छोटी तंजीमें बनी हुई हैं, जी। और ख़ास तौर से वो मुतशायर और मुतशायरात जो है उन्होंने अपनी अपनी तंजीमें बना ली हैं, और वो जो है वो उस पर मुशायरों के लिए कुछ पैसे वैसे उनके पास जेब में हैं, तो वो शायरों को जमा कर लेते हैं। शायर तो चाहता है कि मैं शेर मैंने अगर कहे हैं तो मैं सुनाऊँ भी जाके मतलब, जी बिल्कुल। तो उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो वो शायद पहुंच जाता है मतलब इस तरीके से। लेकिन जो तंजीम चलाने वाला है, हम तो ये समझते हैं कि वो एक काबिल आदमी होना चाहिए, शायर होना चाहिए, आमतौर पर नहीं होता, और भी मामला दूसरे होते हैं मतलब। तो ये एक मेरे नज़दीक तो अफसोसनाक बात है। एक ज़माने में तहरीक चली थी, रुमानवी तहरीक चली है, तरक्की पसंद तहरीक चली है, और दूसरी तहरीकें चली, वो तो ऐसी चीज़ बन के आई थी कि मतलब पूरी दुनिया उसमें समझ का अदब उसमें शामिल था, और सब ने उसमें हिस्सा लिया था मतलब। अब वो ये जो छोटे छोटे मामला हैं, ये वाकई हैरान कौन हमारे लिए, उनका तो क्या मकासद बड़े बड़े होते थे। चलिए, आपको रंजीदा किया, मैंने शेर सुनाइए कुछ अच्छे से। कुछ हमारी नाज़रीन कोशिश यही होती है कि मजाक में काम की बातें भी करें, लेकिन ऐसी काम की बातें ना हो कि आप रंजीदा हो जाएं और उस तरह हो जाएं, और बल्कि हम चाहते हैं कि उसमें भी आपको मुस्कुराहट का मौका मिलता रहे। तो अकबर मलिक साहब जी, बकरा ईद उल अज़हा के हवाले से एक बहुत पुराना शेर है जी जी, कि कुछ जवां कुछ ज़ईफ़ बकरे हैं, कुछ जवां कुछ ज़ईफ़ बकरे हैं, जवां कुछ ज़ईफ़ बकरे हैं, इनमें कुछ तो नहीफ़ बकरे हैं। वाह अच्छा है। कुछ जवां कुछ ज़ईफ़ बकरे हैं, इनमें कुछ तो नहीफ़ बकरे हैं। बकरा मंडी लाहौर तख्त की है, हाँ, बकरा मंडी लाहौर तख्त की है, इसमें सारे शरीफ बकरे हैं। अरे क्या कह रहे हैं भाई, फिर आता कीजिए, ये मेरी पसंद का। वाह 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 वाह, मैं फिर दा दे रहा हूँ, वाह वाह। कुछ जवां कुछ ज़ईफ़ बकरे हैं, कुछ जवां कुछ ज़ईफ़ बकरे हैं, इनमें कुछ तो नहीफ़ बकरे हैं। बकरा मंडी लाहौर तख्त की है, वाह, बकरा मंडी इसमें सारे शरीफ बकरे हैं। भाई वाह 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 वाह, और अदा कीजिए, वाह, आपने तो फड़का दिया मुझे यार। एक किताब और आपकी खिदमत में कि राहत सुकून और खुशी पाता है दिमाग, राहत सुकून और खुशी पाता है दिमाग, राहत सुकून और खुशी पाता है दिमाग, उलझन कोई भी हो उसे सुलझाता है
الجھن کوئی دماغ بھی ہو اسے سلجھاتا ہے دماغ. الجھن کوئی بھی ہو اسے اسے سلجھاتا ہے دماغ. واہ. اور بیگم جو میں کے ہو تو بہت چلتا تیز ہے. واہ 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 واہ. بیگم جو میں کے ہو تو بہت چلتا تیز ہے. بیگم جو گھر پہ ہو تو چلا جاتا ہے دماغ. ہاں ہوش آواز بھی چلے جاتے ہیں. جی جی. بیگم جو گھر پہ ہو تو چلا جاتا ہے جی. دماغ. اجازت تو ایک جی غزل کی اور جی. غزل کی تو جی جی بالکل. ایک تضمینی نعت ہے, اس پہ کچھ کہنے کی کوشش کی میں نے. اچھا اچھا. بڑی معروف نعت. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. ہاں. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. مہنگائی نے اس دیس کو بدحال کیا ہے. واہ واہ. حالی کا مصرع ہے یہ. بالکل. جی جی. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. مہنگائی نے اس دیس کو بدحال کیا ہے. گندم بھی اگی پھر بھی میسر نہیں روٹی. واہ. گندم بھی اگی. گندم بھی اگی پھر بھی میسر نہیں روٹی. چینی کا کبھی آٹے کا بحران بپا ہے. واہ واہ. اور تجھ کو نہ بتائیں تو بھلا کس کو بتائیں. واہ واہ. تجھ کو نہ بتائیں تو بھلا کس کو بتائیں. اس قوم کے لوگوں پہ بڑا جبر ہوا ہے. واہ واہ. امداد کے چکر میں میرے دیس کا حاکم. واہ. امداد کے چکر میں میرے دیس کا حاکم. امت کی خودی بیچ کے خاموش کھڑا ہے. واہ واہ واہ. امت کی خودی بیچ کے خاموش کھڑا ہے. اور جس در کے گدا سارے ہیں اس در نہیں جاتا. واہ واہ. جس در کے گدا سارے ہیں اس در نہیں جاتا. امریکہ کے دربار سے یہ مانگ رہا ہے. واہ واہ. امریکہ کے دربار سے یہ مانگ رہا ہے. اے والی یثرب. واہ. اے والی یثرب شہ لولاک کرم ہو. واہ. اے والی یثرب شہ لولاک کرم ہو. اس دیس کا ہر شخص پریشان بڑا ہے. واہ واہ واہ. اس دیس کا ہر شخص پریشان بڑا ہے. اور اشعار کی صورت میں ہے اکبر کی یہ فریاد. واہ. اشعار کی صورت میں ہے اکبر کی یہ فریاد. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. بھئی کیا کہنا اکبر ملک صاحب. اور اکبر الہ آبادی کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا. اور پروگرام کا اختتام قریب ہے. ہم عاصی صاحب سے ایک دفعہ اور درخواست کرتے ہیں کہ کوئی اچھی سی شاعری اچھے سے قطعات پیش کریں آپ ہمارے ناظرین کے لیے. ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ کے محظوظ ہو رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ دیکھ چکیں گے تو اپنی رائے سے بھی نوازیں گے. جی عطا کیجیے. پیش کرتا ہوں میں. اس قطعے کا عنوان ہے کولیسٹرول. عرض کیا ہے کہ خدا کے فضل سے دونوں ہیں فربا. خدا کے فضل سے دونوں ہیں فربا. دونوں ہیں فربا. مجھے تو ان پہ حیرانی بہت ہے. واہ واہ. مجھے تو ان پہ حیرانی بہت ہے. واہ واہ. نہیں معلوم ہے امید سے کون. واہ واہ. نہیں معلوم ہے امید سے کون. میاں بیوی میں یکسانی بہت ہے. بھائی کیا کہنا ہے. میاں بیوی میں یکسانی بہت ہے. ہاں. اور ابھی کلاس مارکیٹ چلتے ہیں. یہ قطعہ جی پیش کیجیے. جی. افسوس تھان سینکڑوں دکھلائے پر تمہیں. واہ. افسوس تھان سینکڑوں دکھلائے پر تمہیں. راغب نہیں کیا کسی کپڑے کی دید نے. واہ. راغب نہیں کیا کسی کپڑے کی دید نے. عورت یہ بولی کیجئے افسوس کس لیے. ویسے بھی میں تو آئی تھی سبزی خریدنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرزا عاصی اختر اپنے اشعار پیش کر رہے تھے. اور خواتین و حضرات ناظرین یہ مرزا عاصی اختر کی 2 کتابیں گدگدی اور شرارت آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کے 2 مجموعہ ہیں, ایک شعری مجموعہ اور ایک نثری مجموعہ. پروگرام اختتام کی طرف چلا گیا ہے اور ہم آپ سے اجازت چاہنے کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے اگلے پروگرام کے لیے. اور اپنی پسندیدگی سے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. TV Next International.